حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اے بیٹے میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ ایک سوار یہاں سے گزر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اے میرے بیٹے حسین لگتا ہے ہمیں شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا دیکھیں، دنیا والے خانہ کعبہ جا رہے ہیں، دنیا والے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مگر اسی خانہ کعبہ کی عظمت کو صبح قیامت تک کے بچانے کے لیے جانے گرامی حضرت حسین میدان کربلا میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے تھوڑا سا اور آگے بڑھو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے تھوڑا سا دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیاح لامکان بادشاہ عرب و عجم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا و آقا، قبر کی تاریکی میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں کام آنے والے آقا، اذہبوا الی غیری کی صداؤں میں انا لہا کا مزدے جاں فضاں سنانے والے آقا، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آغاز بزم سے لے کر کے ابھی تک یک کے بعد دیگرے آپ حضرات نے کئی ایک نعتیہ کلام سماعت کیا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے مکمل ایک مشاعرہ سماعت کر لیا۔ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کی بڑی معتبر مستند مقتدر واجب الاحترام شخصیتیں تشریف فرمائیں۔ خصوصیت کے ساتھ کرم فرما خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شکیل القادری صاحب کی بلاد آماز اللہ والنورانی، جو جماعت اہل سنت کے نہایت ہی شاندار خطیب مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی تقریریں یار ہم لوگ سن کر تقریر بولنا سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم صاحب کی بلاد شرفید آماز اللہ علیہ والنورانی، ان کا ایک مغز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ جس وقت کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے اور نیند کی آغوش میں جانا چاہیے، اس وقت آپ نے ہمیں بیٹھا دیا ہے۔ ترتیب تھوڑی الٹی ہو گئی، جس وقت مرید کو بیٹھانا چاہیے اس وقت آپ نے مراد کو بیٹھا دیا۔ جس وقت آپ لوگوں کو شاگرد کو سننا چاہیے اس وقت آپ لوگوں نے استاذوں کو بیٹھا دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ مجھ سے بھی آپ حضرات سماعت کر لیں۔ یہ تو اسٹوڈیو والا مائک ہے جی، اسٹوڈیو جانتے ہیں اس میں یہ سب مائک استعمال ہوتا ہے۔ ایک بار اور درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ کرم فرماؤں کی کرم فرمائیاں تھیں، آپ کے بارگاہ محبت میں حاضر ہوا۔ کل بامبے سے گھر پہنچا، تھکا مادہ تھا، ہمت نہیں جٹا پایا تھا،
انکار بھی کیا تھا۔ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں مولانا اعجاز جبل پوری، جبل پور میں خطیب و امام ہیں، اور وہاں پر ایک عظیم الشان ادارہ سید حسن عسکری میاں چلاتے، وہاں کی ماہ ناز مدرس ہے۔ ان کا حکم ہوا اور میں حاضر خدمت ہوا۔ یہ جو ساؤنڈ ہے اس کا ذرا رخ میری طرف کریں۔ اچھا ادھر ہی والا کر دیجئے، تھوڑا سا ذرا گھمائے تو ساؤنڈ بالکل کان سب آواز اس کی آنی چاہیے۔ تھوڑا اسٹیج کی طرف کریں، بس رہنے تھوڑا آواز آپ صحیح کر دیجئے، تھوڑا کھینچنے نہ پائے۔ بڑا میں اندر بیٹھ کر سن رہا تھا لیکن آواز نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ دھم دھم کی آواز بالکل ایک دم ریل جو آواز ہے، جو اصل آواز ہوتی ہے، اس کو پیدا کریں۔ ایک بار درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں بالکل وہیں پر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیزان گرامی وقار، ذکر شہدائے کربلا سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ہر سال اس مقدس اور حرمت والے مہینے میں آپ خطبہ کی زبانی، علماء کرام کی زبانی شہادت کربلا کا داستان، ذکر شہدائے کربلا آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے میں سیدھے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اپنے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کے درمیان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسنین کریمان کے تعلق سے بہت ہی محبت بھرے الفاظ ادا فرمائے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا مخدوم گرامی وقار کی زبانی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہی میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا۔ ذرا دیکھیں پیارے کہ آقا کریم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام سرزمین مدینہ میں تشریف فرما ہیں، میرے آقا کا گزر ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے کان میں رونے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونک پڑے اور چونکنے کے بعد اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو میرے آقا نے آواز دیا۔ آواز دینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا لبیک کہتی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا پیارے آپ ملاحظہ فرماتے چلیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرے بیٹے حسین ہیں جو ابھی رو رہے تھے، انہی کے رونے کی آواز میرے آقا آپ کے کان میں آ رہی تھی۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، خدا کی قسم جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آپ ذرا دیکھیں، یہ میرے آقا حسین ہیں جب پیارے بچپنے کے عالم میں رو رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کو پیارے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا پیارے توجہ کرو، جب کربلا کے میدان
میدان میں ظالم یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو پیارے ذبح کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے قلب نازک کو پیارے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا دیکھیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا پیارے دیکھتے چلیں داستان کربلا، آپ نے پیارے علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی مجھ سے پیشتر علامہ کی زبانی پیارے آپ نے سماعت فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے اپنے سجدوں کو پیارے لمبا فرما دیا کرتے تھے، کہیں پیارے حسین کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زندگی کے ہر مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مراتب کو میرے پیارے آقا نے پیارے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا حضرت حسین کو کبھی داہنے کاندھے پر لے رہے ہیں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کبھی بائیں کاندھے پر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے میرے آقا کبھی اپنے گود میں لے کر کے پیار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے کبھی سجدوں کو طویل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رونے سے میرے آقا کے قلب نازک کو پیارے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا پیارے دیکھتے چلیں، حضرت حسین کے فضائل کتنے عظیم ہیں، حضرت حسین کی شان کتنی پیارے بلند ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو پروردگار عالم نے کتنا عظیم فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا دیکھتے چلیں، حضرات شہادت کربلا کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، داستان کربلا کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، یہی میدان کربلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ظلم کی زمین مانی جا رہی ہے، جو آفتوں کی زمین مانی جا رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پوری دنیا کے لوگ عزیزان گرامی حج کے مہینہ میں حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ شریف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے کلمہ پڑھنے والے جو پوری دنیا میں پیارے بسے ہوئے ہیں، یکی بات دیگرے لوگ عزیزان گرامی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدارک الانوار پر جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ حاضری دینے کے لیے جوک در جوک دور عاشقان رسول جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پیارے ایام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے تاریخ کا یہ المیہ اپنے گاہوں کے سامنے رکھو، جب پوری دنیا خانہ کعبہ کے لیے جا رہی ہے، ہاں پوری دنیا اسی مدینہ طیبہ کا پیارے دیدار کرنے کے لیے جا رہی ہے، جس مدینہ طیبہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرما رہے ہیں کہ حاجیو یا شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، ارے میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آپ ذرا دیکھتے چلیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے عزیزان گرامی مدینہ دیکھنے کے لیے مدینہ حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں پیارے حاضر ہونے والے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت لوگ کرنے کے لیے پیارے بڑی تیزی کے ساتھ حجاز مقدسہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مدینہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں پیارے، جس مدینہ طیبہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے برادر صغیر علامہ حسن رضا خان بریلوی بیان فرما رہے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، اس جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں پیاری وہی مدینہ ہے کہ جس کے تعلق سے علماء کے زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ 70,000 فرشتے صبح نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نبی کونین کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کیا کرتے ہیں۔ ہاں یہی وہ مدینہ طیبہ ہے جس کے تعلق سے پیارے فرمایا گیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، ادب گاہی کے زیر آسمان درش نازک تر نفس گم کرتا میاں یا جنید و بایزیدی جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ عزیزان گرامی حجاز مقدسہ آ رہے ہیں، مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے دین بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت بچانے کے لیے، اسلام کا تحفظ فرمانے کے لیے، بے حیائی اور برائیوں کا ماحول ختم کرنے کے لیے، یزید وقت سے مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک اسی ایام حج میں پیارے، اسی حج کے مہینہ میں حضرت حسین سرزمین مکہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں، سرزمین مدینہ کو پیارے حسین چھوڑ چکے ہیں، اور سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کے میرے آقا حسین پیارے کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ سرزمین مکہ کے بڑے بڑے سربراہ اردہ صحابیوں نے عرض کیا تھا، یا ابن رسول اللہ، آپ سرزمین کوفہ نہ جائیں، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے بدکار لوگ ہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں سرکار، انہوں نے حالت جنگ میں آپ کے والد گرامی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر برابر لگاتار کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے حسین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تقدیر کی پیاری
लिखों को कौन मिटा सकता है हजरात गिरामी, वक्त मेरे पास बड़ा कम है, इस वजह से बड़ी तेजी के साथ प्यारे आपको करबला में पहुंचा दिया करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे बड़ी तेजी के साथ सूए करबला जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ अदीदाने गिरामी सरजमीन कूफा जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर मादल्ला इल्जाम लगा दिया जाता है प्यारे कि मादल्ला हुसैन हुकूमत करने के लिए गए थे, हुसैन तख्त व ताज के लिए गए थे, हुसैन इख्तिदार के लिए गए थे। हजरात यही इख्तिदार है कि जिसको हजरत इमाम हुसैन के सगे भाई हजरत इमाम हसन ने पूरी खिलाफत पूरी हुकूमत अदीदाने गिरामी यजीद के बाप हजरत मेरे मुआविया को सौंप दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा तवज्जो करें प्यारे, हुकूमत करने के लिए हुसैन नहीं गए थे। आप जरा प्यारे करबला की तारीख का पस मंजर मुलाहिदा फरमाएं लोगों। अदीदाने गिरामी कूफियों ने बराबर खुतूत हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में लिखे थे, सरकार आप सरजमीन कूफा चले आए, यजीद की पैयत हम नहीं करेंगे, यजीद जालिम व जाबिर इंसान है, यजीद शराबी इंसान है, सरकार आप सरजमीन कूफा आ जाए, हम लोग आप ही को अपना इमाम तसव्वुर करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर प्यार एक इल्जाम ये भी लगा दिया जाता है, इमाम अल्लाह रब्बिल आलमीन हुसैन मैदान करबला में जंग करने के लिए गए थे। हजरात तारीख का पस मंजर और करबला का अदीदाने गिरामी पस मंजर अपने निगाहों के सामने रखो। आप जरा देखो, कोई जंग में अदीदाने गिरामी जाता है तो असलहा लेकर के जाता है, फौज लेकर के जाता है, अपने तमाम नौजवान साथियों को लेकर के जाता है, लेकिन जरा करबला का मंजर प्यारे आप मुलाहिदा फरमाओ। करबला में हुसैन जा तो रहे हैं प्यारे, लेकिन अदीदाने गिरामी अगर हुसैन जंग करने के लिए करबला के मैदान में जाते तो अदीदाने गिरामी अपने 6 महीने बच्चे अली असगर को लेकर के ना जाते। कोई मैदान जंग में अपने बहनों को लेकर के नहीं जाता है, कोई मैदान जंग में अपनी बीवियों को लेकर के नहीं जाता है, कोई मैदान जंग में अपने बच्चों को लेकर के नहीं जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन के साथ में करबला में जाने वाले प्यारे उनके 6 महीने बच्चे अली असगर भी हैं, उनकी बहन हजरत ज़ैनब भी हैं, उनकी बीवी हजरत शहरबानो में है, उनकी बीमार बेटे हजरत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना भी हैं। हजरत गिरामी आप तारीख करबला आप देखते हुए चलिए, बड़ी तेजी के साथ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे करबला के मैदान में प्यारे पहुंच रहे हैं। रास्ते में अदीदाने गिरामी हजरत हुसैन का काफिला पड़ा हुआ हजरत हुसैन के कान में आवाज आती है कि सरकार आपके वो भले आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेदर्दी के साथ जालिमों ने सरजमीन कूफा में शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके दोनों साहबजादों को जालिमों ने तड़पा तड़पा कर सरजमीन कूफा में मार डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है प्यारे अपने तमाम साथियों से कहते हैं, ये साथियों जिसे जाना हो चला जाए, ये सरजमीन कूफा है बड़ी खतरनाक जगह बन गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे जो लोग मदीना तैयबा से मक्का सरजमीन से हजरत हुसैन के साथ में थे वो कोई भी प्यारे वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में जा रहे हैं। आपने प्यारे वालमा की ज़ुबानी सुना होगा, हुर इब्न रियाही का नाम प्यारे सुना होगा। 1000 का लश्कर जर्रार लेकर के सरजमीन करबला में आ रहे हैं प्यारे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता रोक लिया गया है। हुसैन आपको यजीद की पैयत करनी पड़ेगी। हुसैन मुझे हुक्म मिला है कि आपको पाबंद सलासिल करके करबला के मैदान में लाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा प्यारे देखें, ज़ोहर की अज़ान हो रही है। आकाए नेमत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुर इब्न रियाही से फरमा रहे हैं, ए हुर इब्न रियाही अज़ान हो रही है, क्या तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ना पसंद करोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। हुर इब्न रियाही अदीदाने गिरामी हजरत हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा नमाज प्यारे पढ़ी, असर की नमाज हजरत इमाम हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन के पीछे पढ़ रहे हैं। हजरात मुक्तदी बन गए हैं हजरत हुर इब्न रियाही। लेकिन इसे इफ्तिदा करने का अदीदाने गिरामी तकाज़ा प्यारे क्या हुआ करता है, आज हम नमाज अपने इमाम के पीछे पढ़ा करते हैं, पीठ पीछे निकल करके प्यारे उलमा की बुराई हम कर रहे हैं, इमाम की बुराई प्यारे हम कर रहे हैं। जरा तारीख़ करबला प्यारे आप पढ़ो। हजरत हुर इब्न रियाही हजरत इमाम हुसैन के मुक्तदी बन गए हैं। और इस मुक्तदी बनने का अदीदाने गिरामी कैसा अदीदाने गिरामी रोल अदा किया था मैदान करबला में। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा प्यारे देखें, हुसैन बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुर इब्न रियाही 1000 फौजियों को लेकर के घेराबंदी कर चुके हैं। हुसैन मैदान करबला में यजीद का हुक्म हो चुका है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का मेरे पास आर्डर आ चुका है कि आपको करबला की जमीन पर ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाए जहां पर जमीन नशीबी हो, पानी का ये खतरा ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे बड़ी तेजी के साथ कहते हैं कि ये हुर इब्न रियाही थोड़ा सा मुझे मौका दे दो। रात का सन्नाटा प्यारे आया है। रात के सन्नाटे में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारे आंख खुलती है। अल्लाह खुलने के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात जारी हो रहे हैं। उनके बेटे हजरत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन की बारगाह में एक बीमार बेटा अर्ज करता है, मेरे अब्बू जान इस वक्त कलमा तरजीह, इस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आ गई है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा रहे हैं, ए बेटे मैं
میں نے अभी ख्वाब में देखा कि एक सवार यहाँ से गुजर रहा है और ऐलान कर रहा है कि ये लोग जा रहे हैं और मौत इनके पीछे पीछे चल रही है। ये मेरे बेटे हुसैन, लगता है हमें शहादत की खबर दी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजीब सी खुशबू महसूस हुई। एक घोड़े ने काम करना बंद कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। चाबुक पे चाबुक लगाए प्यारे जा रहे हैं, लेकिन घोड़ा एक मिनट के लिए प्यारे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला प्यारे पहुंच चुके हैं। चौक पड़ते हैं, या अल्लाह मामला क्या है, मेरा घोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्यारे तैयार क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तमाम साथियों से कहते हैं, ए साथियों जरा ये तो बताओ इस जगह का नाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम साथियों ने कहा था, सरकार इसे अर्ज़तीफ कहा जाता है। कहा इसका कोई और भी नाम होगा। कहा मेरे सरकार इसको नैनवा कहा जाता है। कहा कोई और भी नाम होगा। लोगों ने कहा सरकार इसको करबला कहा जाता है। इतना सुनना था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ए मेरे साथियों घोड़ा यही बांध दिया जाए, कजावे यही खोल दिए जाए, ऊँटनी को यहाँ बांध दिया जाए। यही हमारी शहादत की जगह है। यहीं पर मेरा बेटा मारा जाएगा। यहीं पर हमारे निवासों का खून बहेगा। यहीं पर हमारे भतीजे मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। साथियों ने अर्ज किया था, हुसैन आपको कैसे मालूम हुआ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे बयान फरमा रहे हैं कि ये मेरे साथियों, एक मर्तबा इसी मकाम पर मैं अपने वालिद गरामी हजरत मौला अली के साथ जंग सिफ़ीन से वापस हो रहा था। तो इसी करबला में पहुंच करके मेरे बाप हजरत मौला अली ने कहा था, ए दुनिया वालों गवाह है ना, इसी करबला में हमारे बेटे मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखें, करबला की ज़मीन पर हुसैन अपने तमाम साथियों के साथ प्यारे पहुंच चुके हैं। अब करबला में ऐसी खतरनाक जंग होने वाली है प्यारे, ऐसी मुसीबतें टूटने वाली हैं अहले बैत पर, ऐसे जुल्म सितम के प्यारे पहाड़ टूटने वाले हैं अहले बैत नबुव्वत पर। तारीख ने प्यारे अभी तक ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। इतिहास में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। जनाबे आदम से लेकर के जनाबे ईसा तक और सुबह क़यामत तक प्यारे ऐसी तारीख न कभी आपने सुनी होगी और न सुबह क़यामत तक प्यारे ऐसी तारीख लिखी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीर। यजीदियों का मकसद ये था प्यारे, कानून मुस्तफा को तहोबाला कर दिया जाए। हुसैन मिटेंगे तो हुसैनी खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। मगर तारीख करबला कल भी ऐलान कर रही थी और आज भी ऐलान कर रही है और सुबह क़यामत तक ऐलान करती रहेगी कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप जरा देखें, ये करबला का मैदान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे करबला के मैदान में आ गए हैं जालिम यजीदियों ने। आप जरा तस्वीर करें, वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से मैं मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार हुसैन के सामने है। बातें समझ में आ रही? एक शेर सुना दूं आप लोगों को, शेर सुन लीजिए। नूरे हक के जले ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जले ने दिल को जगमगा डाला और मुस्तफा की आमद ने अरे कुफर को मिटा डाला। नूर हक के जले ने दिल को जगमगा डाला। और थर थरा गए जालिम खौफ से हुए लरज़ा। अरे एक नन्हे असग़र ने अरे करबला हिला डाला। नूर हक के जले ने दिल को जगमगा डाला। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अर्ज कर रहा था प्यारे कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जुल्म देखे मैदान करबला में। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले कितने नाबकार लोग थे जिन्होंने हुसैन को मैदान करबला में प्यारे भुला करके बड़ी मजलूमियत के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे मैदान करबला में पहुंच गए। यजीदियों ने पानी पर पाबंदी लगा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो पानी जिसको यहूदी पानी पी सकते हैं प्यारे, नहर फुरात का पानी ईसाई पी सकते हैं, नहर फुरात का पानी चरिंदो परिंद पी सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले प्यारे रसूल पाक के निवासों के ऊपर प्यारे पानी को बंद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन मैदान करबला में है। हुसैन के कोई भी साथी प्यारे मैदान करबला में नहर फुरात से पानी नहीं पी सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा तवज्जो करिए, नाना जान का कलमा पढ़ने वाली उम्मती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके इशारे पर क़यामत के मैदान में प्यारे न जाने कितने गुनहगारों को प्यारे पानी पिलाया जाएगा और जामे कौसर का छलकता हुआ जाम मेरे मुस्तफा अपने हाथ से इनायत फरमाएंगे। उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत अल्लाह अकबर कबीरा मैदान करबला में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पारे निवासों के ऊपर पानी को बंद कर दिया जा रहा। हज़रात ग्रामी 22,000 का लश्कर जर्रार है। ये के बाद दीगरे प्यारे आप जरा देखें, करबला के मैदान में जब शोरगुल हुआ था तो अदीदान ग्रामी कहा गया था, यजीदियों तुम हमसे क्या चाहते हो? यजीदियों ने कहा था, इमाम हुसैन आप यजीद की बैयत कर लें, आपको इख्तिदार दे दिया जाएगा और आपको कोई भी गजन और तकलीफ ना पहुंचाई जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन आजम को मालूम हो गया था ये जालिम इंसान करबला के मैदान में हमको मार डालेंगे, ये जालिम इंसान हमारे खानदान को करबला के मैदान में तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आप जरा मुलाहिदा फरमाए, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को प्यारे यकीन हो गया था कि हजरत की नबी कौनैन के निवासे को ये लोग मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। हुसैन आजम ने प्यारे करबला के मैदान में जालिम यजीदियों के सामने मुतालबा किया था, ये जालिम यजीदियों कम से कम एक रात तो हमें इनायत कर दो, ताकि एक रात है हम लोग परवरदिगार आलम की खूब इबादत कर लें, कुरान अज़ीम की तिलावत कर लें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आप मुलाहिदा फरमाओ, ये मैदान करबला है, जुल्म की जमीन मानी जा रही है, आफतों की जमीन मानी जा रही है, मुसीबतों की जमीन मानी जा रही है। इमाम हुसैन को मालूम है कल का सूरज जो आने वाला है बड़ा खतरनाक होगा। इमाम हुसैन को मालूम है कि हमारे तमाम साथी इसी मैदान करबला में मारे जाएंगे। हुसैन को मालूम है ये खून के प्यासे हमारा खून मैदान करबला में बहाएंगे। मगर ऐसे हालात में अदीदान ग्रामी जालिम यजीदियों से अदीदान ग्रामी जिंदगी की भीख इमाम हुसैन नहीं मांग रहे हैं, अमन का परवाना इमाम हुसैन नहीं मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि उन जालिम यजीदियों से सिर्फ एक रात का मुतालबा करते हैं। जालिम यजीदियों, कम से कम एक रात तो हमें दे दो, मैं अपने अल्लाह की इबादत कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में है प्यारे। रात का सन्नाटा है, जब पूरी आबादी प्यारे सो रही है, इधर खीमा यजीदी लगा हुआ है, इधर खीमा हुसैन लगा हुआ है। खीमा यजीदी में प्यारे शराब पिया जा रहा है, वहाँ पर नाच गाने बजाए जा रहे हैं, वहाँ पर जुल्म सितम के सियाह तरीन अदीदान ग्रामी मंसूबे बन रहे हैं, और इधर खीमा हुसैनी में कुरान अज़ीम की प्यारे तिलावत की जा रही है। कोई अपने अल्लाह की बारगाह में सजदों में पड़ा हुआ है, कोई अदीदान ग्रामी तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है। रात भर ये अदीदान ग्रामी खीमा हुसैनी के लोग अपने परवरदिगार की इबादत कर रहे हैं। अपने इस तर्ज़े अमल से प्यारे करबला वालों ने ये पैगाम दे दिया, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हालात चाहे जैसे हो मगर नमाज वक्त की पाबंदी किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, कुरान अज़ीम की प्यारे तिलावतें अपने घर में किया करो। हज़रात ग्रामी, अगर हमारे यहाँ बाप की मस्जिद ना हो, अगर किसी का इंतकाल ना हो तो प्यारे हम कुरान ना पढ़ें, अगर हमारे घर में तीजा ना हो तो प्यारे कुरान अज़ीम को ना पढ़ा जाए, अगर 40वां ना हो तो प्यारे कुरान अज़ीम की तिलावतें ना की जाएं, अगर बरसी ना मनाई जाए तो प्यारे कुरान अज़ीम के पारे हमारे घरों में ना पढ़े जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मैदान करबला है, जालिम यजीदी प्यारे शराब पी रहे हैं। अदीदान ग्रामी, जालिम यजीदी बदकिरदारी के एक अदीदान ग्रामी अजीबो गरीब तारीख मुरतब करने वाले हैं, और इधर नबी के निवासे रात भर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अदीदान ग्रामी, सुबह सवेरे का नाम सुबह सवेरा अदीदान ग्रामी होता है। अब करबला की एक ऐसी तारीख प्यारे लिखी जाने वाली है जिसको सुन करके बड़े बड़े शोरमा के प्यारे दिल रह जाते हैं। अदीदान ग्रामी, क़त्ल हुसैन असलम मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन है। जालिम यजीदियों से कहते हैं, ए जालिम यजीदियों, हमारे अपने हाथ को हमारे खून से रंगीन ना करो। जालिम यजीदियों, क्या तुमको नहीं मालूम है कि हमारे बारे में मुस्तफा जान रहमत ने क्या फरमाया था? अल हसनो मिन्नी अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मेरे नाना ने हमारे लिए फरमाया था। नादान, पूरी दुनिया का चक्कर लगा जो इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको फातिमा का बेटा कहा जाए, जिसको मुस्तफा का निवासा
कहा जाए सिवाय हमारे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान करबला में मेरे आका हुसैन यजीदियों के सामने प्यारे अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, अपने मरातिब को बयान कर रहे हैं, अपनी शान को बयान कर रहे हैं, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए क़यामत के मैदान में। ये जालिम यजीदी ये ना कह पाए कि ये परवरदिगार हम हुसैन को नहीं जानते थे, हुसैन की शान से ना बलद थे, हुसैन के वकार को परवरदिगार आलम हम नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जालिम यजीदियों की तरफ से प्यारे जुल्म और सितम की एक भयानक तारीख लिखी जाने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। यके बाद दिगरे हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी मैदान करबला में प्यारे शहीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुस्लिम बिन औसजा भी मार डाले गए हैं, अदीदान गरामी हजरत खुबैब भी मार दिए गए हैं, हजरत हुरै बिन रियाही भी मैदान करबला में प्यारे शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तमाम के तमाम साथी आमान और अंसार मैदान करबला में अदीदान गरामी बड़ी बेदर्दी के साथ जालिमों ने मार डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन के सामने उनका भतीजा भी प्यारे खड़ा था, तारीख में जिसका नाम हजरत कासिम इब्न हसन आता है। एक चचा एक भतीजे से प्यारे भतीजा एक चचा की बारगाह में अर्ज करता है, ए मेरे प्यारे आका हुसैन मुझे भी मैदान करबला में आज जाने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन आजम ने कहा था, ए हमारे भतीजे तुम हमारे भाई के निशानी हो, तुम देख रहे हो मैदान करबला में आज जो भी जाता है मारा जाता है। ये जालिम यजीदी खून के प्यासे हैं, इन जालिम यजीदियों को रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने का लिहाज पास ना रहा। ये जालिम यजीदी वक्त के ऐसे नाबकार है कि आज करबला के मैदान में रसूलुल्लाह के घराने का जो भी आदमी जाएगा मार डाला जाएगा। हजरत इमाम कासिम अर्ज करते हैं, ए मेरे चाचा जान, ए मेरे चाचा जान, फिर भी मुझे शौक शहादत है, शहादत का जाम हमें भी पीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे को अपने कलेजे से लगाते हैं और लगाने के बाद अपने भतीजे को मेरे सरकार सुए मक्तल रवाना कर रहे हैं। शहादत का दूल्हा बना करके हजरत कासिम मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैमना पर हमला करते हैं तो मैमना साफ हो जाता है, मैसरा पर हमला करते हैं तो मैसरा साफ हो जाता है। हाशमी खानदान का ये नौजवान मैदान करबला में जालिम यजीदियों को ललकारता चला जा रहा है। ए जालिम यजीदियों, तुम्हारे पास हिम्मत हो तो हमारा मुकाबला करो, अगर तुम्हारे पास कुव्वत है तो हमारा मुकाबला करो। किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो हसन इब्ने हुसैन कासिम का मुकाबला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखे सारे अरज़क के चारों बेटे मैदान करबला में हजरत कासिम के मुकाबले में आ रहे हैं। ये की बात दीगरे हजरत कासिम सबको जहन्नम में पहुंचाते चले जा रहे हैं। आखिर में अरज़क पहलवान जो 1000 सवारों के मुकाबला का माना जाता था मैदान में आता है। हजरत कासिम ने तलवार चमकाई है तारे, उसे भी मौत के घाट उतार दिया है। अदीदान गरामी जालिम यजीदियों के सफों में हजरत कासिम जहां जहां जा रहे हैं मौत का सन्नाटा पैदा हो जा रहा है। जालिम यजीदी भागते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैदान करबला में हजरत कासिम की जगह पर खुद फातह खैबर मौला अली की तलवार चल रही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जालिम यजीदी मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नारा बुलंद हुआ, कोई भी यजीदी बच करके जाने नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाशमी खानदान का ये पहला जाबाज मुजाहिद है जो मैदान करबला में अदीदान गरामी 3 दिन का भूखा प्यासा अपने तलवार का जौहर दिखा रहा है। और जौहर क्यों ना दिखाए पारे, इसकी रगों में फातिमा का दूध शामिल है। हाँ, इसके बाप का नाम मौला अली है, जिसको शेर खुदा कहा जाता है, जिसको कुव्वते परवरदिगार कहा जाता है, जिसने अपने बाजुओं से अदीदान गरामी खैबर का किला उठा करके फेंक दिया है। उसी हसन का बेटा मैदान करबला में अपनी जाबाजी का मुजाहिरा कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखें, हुसैन की बारगाह में हजरत कासिम है। चाचा जान, प्यास लग गई है। ए चाचा जान, अगर पानी का एक कतरा हमारे हलक के नीचे चला जाए तो कोई भी यजीदी यहाँ से जिंदा बच करके नहीं जा पाएगा। हजरत हुसैन कहते हैं, ए मेरे भतीजे, क़यामत के मैदान में देखो देखो अपने निगाह से मुस्तफा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जामे कौसर का छलकता हुआ जान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे आका हुसैन ने तसल्ली दी है। अब हजरत कासिम दोबारा फिर मैदान करबला में गए हैं। तलवार का जौहर लगाते दिखाते दिखाते कोई यजीदी प्यारे जिंदा सलामत जो नहीं बच पाता है, जो भी सामने आता है मारा जाता है। अमर इब्न साद ने ऐलान किया, ये रसूलुल्लाह के घर का शहजादा है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। भले ही 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ से तीर बरसाया जाए, चुनांचे चारों तरफ से यजीदी हमले कर रहे हैं, तीर बरसा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे जालिमों ने बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में मार डाला। या अम्मा हो अदरिकनी की आवाज हजरत इमाम कासिम ने गिरते हुए लगाई। हजरत हुसैन जंग का नक्शा मुलाहिदा फरमा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ भागते हुए गए, अपने गोद में अपने भतीजे को लिया। भतीजे ने अपने चचा को देखा और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद उनकी जान जाने आखिर के सपुर्द हो गई है। प्यारे करबला में हुसैन है, उनके हाथ में उनके भतीजे की लाश रखी हुई है। हजरात
हजरात इतनी आसानी के साथ इस्लाम हमारे घरों में नहीं पहुंचा है जितने आसानी के साथ हम इस्लाम का जाने ग्रामीण कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं। अजान होती नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, कुरान हमारे घर में रखा हुआ मगर कितना हम कुरान की तिलावत करते हैं, इस्लाम को प्यारे हम कितना फॉलो करते हैं। हजरात इस्लाम को अपने सीने में बचाओ। इतनी आसानी के साथ इस्लाम हमारे घरों में नहीं आया है। मैदान बद्र से लेकर के मैदान करबला तक की तारीख हमारे पुरखों ने अपने खून से रंगीन किया है, तब जाकर के इस्लाम की अमानत हमारे सीनों में आई है, तब जाकर के तौहीदो रिसालत के दीदाने गरामी अजीम शान नेमतें हमारे दिल के अंदर मौजूद हैं। इस्लाम को प्यारे फॉलो करो, इस्लाम के कानून का एहतराम करो। इस्लाम जो हमारे सीनों के अंदर है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अगर चाहता तो हमको हिंदू भी बना सकता था, हमको यहूदी भी बना सकता था, हमको ईसाई भी बना सकता था। अल्लाह किसी सात धर्म में प्यारे हमको पैदा कर देता, मगर ये अल्लाह का एहसान ही तो है कि अल्लाह ने हजारों मज़ाहिब के बीच में हमारे लिए इस्लाम चुना है। ये अल्लाह का करम ही प्यारे कि अल्लाह ने हमें मोमिन और मुसलमान बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखो, इसी ईमान की हिफाजत के लिए हुसैन मैदान करबला में है, अपने भतीजे की लाश अपने हाथों में उठा रहे हैं। उनके जो छोटे छोटे ग्रामीण नवासे भांजे हैं, आनो मोहम्मद है मैदान करबला में, वो भी प्यारे मार डाले गए हैं। हजरत हुसैन उनकी भी लाशें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे उनके 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक बाप से अदीदाने ग्राम मैदान करबला में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। ए मेरे पापा जान, मुझे भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान करबला में तमाम लोग जो भी जा रहे हैं प्यारे मार डाले जा रहे हैं। अब एक बेटा है प्यारे, 18 साल की कड़कती हुई जवानी है। एक बाप की बारगाह में बेटा अपने आंखों में आंसू ला करके अर्ज करता है, ए वालिदे गरामी, ए मेरे प्यारे हुसैन, हमें भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। ए अब्बू जान, हमारे भाई हजरत कासिम को जालिमों ने मार डाला है, हजरत हुर को जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है, हमारे तमाम आवानो अंसार को जालिमों ने मैदान करबला में मार डाला है। ए मेरे वालिदे गरामी, हमें भी मैदान करबला में जाने दो। सरकार, हम चले जाएंगे तो हम पानी जरूर लेकर के आएंगे। ए मेरी सरकार, ए मेरे वालिदे गरामी, मेरा एक छोटा सा भाई हजरत अली असगर है, 6 महीने का बच्चा है। मेरे अब्बू जान बार बार अपनी जुबान को बाहर निकाल रहा है। ए मेरे अब्बू जान, अपने भाई अली असगर का तड़पना मुझे रोना देखा नहीं जाता है। ए मेरे वालिदे गरामी, हमें भी मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अदीदाने गरामी बेटा है जो अपने बाप से शहादत की भीख मांग रहा है। एक बेटा है करबला के मैदान में बेयारो अजनबी मैदान में अदीदाने गरामी जो अपने बाप से मौत की भीख मांग रहा है। कौन ऐसा बेटा है जो अपने सामने अपने बेटे को मरता हुआ देख सके? कौन ऐसा बाप है जो अपने सामने अपने सगे बेटों की अदीदाने गरामी जवानी को खाको खून में तड़पता हुआ देख सके? ऐसा देखने के लिए हुसैन का जिगर चाहिए, हुसैन की हिम्मत चाहिए, हुसैन की जुर्रत चाहिए, हुसैन के सब्र और इस्तिकामत चाहिए, जो मैदान करबला में हुसैन दिखाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन ने अली अकबर को अपने सीने से लगाया है, कहा, हमारे बेटे, दुनिया में शायद कोई ऐसा बाप ना मिले जो अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बनाए। ए मेरे बाप, दुनिया में शायद आज के बाद कोई ऐसा बेटा ना मिले जो अपने बेटे को मौत के हवाले करने के लिए तैयार हो जाए। तारीख में याद रखा जाएगा कि एक बाप अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बना रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जालिम यजीदी प्यारे कितने खतरनाक हैं। हुसैन रहने वाले मदीना के हैं, हुसैन रहने वाले अरब के हैं, हुसैन रहने वाले मक्का के हैं, हुसैन रहने वाले मदीना के हैं, मगर इन जालिमों ने अपने घर में बुलाया, हुसैन आओ हम तुम्हारा साथ देंगे, हुसैन आओ हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, हुसैन आओ हम तुम्हारे हाथ पर लब्बैक कहेंगे, हुसैन आओ हम तुम्हारे हाथ में हाथ दे करके इमाम मुतलक बनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन को मेहमान की तरह करबला में बुलाया गया था, हुसैन को दीदाने गरामी बादशाह की तरह कूफा में बुलाया गया था, हुसैन को प्यारे अपने आका के हैसियत से करबला के मैदान में बुलाया गया था। मगर देखिए ये जालिम यजीदी हुसैन के साथ में कौन सा सलूक कर रहे हैं। हुसैन के सामने उनको भाइयों को मार डाला गया, हुसैन के सामने उनको बेटों को ज़बह कर दिया गया, हुसैन के सामने उनके भांजों को खाको खून में तड़पा दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन के सामने उनका बेटा अदीदाने गरामी मौत की भीख मांग रहा है। हजरत अली अकबर हैं, अपने हाथ से मेरे आका हुसैन अपने शहजादे को शहादत के रास्ते का दूल्हा बना रहे हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बुआ हजरत ज़ैनब की बारगाह में है, ए बुआ जान, मैदान करबला जा रहा हूँ, ए बुआ जान, हमें इजाजत दो। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला की अजनबी जमीन पर एक बुआ अपने भतीजे को अल्लाह अकबर कबीरा गले से लगा रही है। हुसैन इब्ने अली का ये शहजादा है। हजरत मासूम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे तसल्ली पे तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर को उनकी माँ अपने कलेजे से लगा करके मैदान करबला में शहादत का दूल्हा बना करके रुखसत कर रही है। आसमान हैरत के आलम में प्यारे ये मंजर मुलाहिदा फरमा रहा है। जमीन हैरत के आलम में ऐसे अदीदाने गरामी जुर्रत और सखावत वाले लोगों को अपने माथे के निगाह से देख रही है। कहाँ प्यारे ऐसा होता है, एक अदीदाने गरामी, एक बुआ हो जो अपने भतीजे को सूए मक्तल रवाना कर रही है, एक माँ की ममता है जो अपने कलेजे से जुदा करके अपने शहजादे को अदीदाने गरामी करबला के मैदान में भेज रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुल्म करबला की जमीन पर हो रहा है, ये तारीख करबला की जमीन पर लिखी जा रही है। एक बेटे को, एक माँ से एक बेटे को
करबला की जमीन पर अलग किया जा रहा है प्यारे। एक भाई को भाई के हाथ से खींचा जा रहा है। करबला की दास्तान प्यारे आप पढ़ते चलो, यही करबला का मैदान में है। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे अपने बाबा जान हजरत इमाम हुसैन के कलेजे से जुदा होते हैं। हजरत ज़ैनब को सलाम पेश किया, अपनी माँ के ऊपर एक निगाह डाली, आंखों में आंसू लेकर के बड़ी तेजी के साथ खेमे हुसैन थे। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मैदान करबला में गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा तारे मैदान करबला में जब कोई जाता है, यानी जंग के मैदान में जब कोई जाता है तो उसी जंगी लिबास पहन करके जाता है। लेकिन हुसैन का ये बेटा वही सादा लिबास पहन करके शौक़े शहादत में करबला के बीच मैदान में प्यारे खड़ा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन हो गया है। पानी का एक कतरा प्यारे हलक के नीचे नहीं गया है, दाना पानी में प्यारे हलक के नीचे नहीं गया है। अल्लाह अकबर कबीरा कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। ये तो दूसरों को पानी पिलाने वाले लोग थे, ये तो दूसरों को खाना खिलाने वाले लोग थे, ये तो रोतों को हंसाने वाले लोग थे। आज उन्हीं लोगों को करबला के मैदान में जालिम यजीदियों ने बुला करके भूख से तड़पा रहे हैं, प्यास से तड़पा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा उनके आंखों में आंसू ला रहे हैं, उनके सामने उनको बच्चों को ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा अब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मैदान करबला में है, जालिम यजीदी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हम सभी है पैगंबर की हैसियत हजरत अली अकबर की थी प्यारे। ऐसा लगता था कि जैसे चाँद सूरज हजरत अली अकबर के गाल में समा गए। इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, इतने जमील थे, इतने अच्छे थे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा 18 साल की उम्र, नौजवान तो प्यारे इस उम्र में खड़े खड़े पेशाब करता है, मगर ये अली अकबर है 18 साल की कड़कती जवानी है, मगर इस्लाम को सुबह क़यामत तक महफूज करने के लिए मैदान करबला में अपने जान का नजराना पेश करने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा अज़ीज़ान गिरामी तलवार निकाली हजरत अली अकबर ने, ये यजीदियों मुकाबला करना है, तुमने हमारे भाइयों को मार डाला, तुमने हमारे भतीजों को मार डाला, तुमने हमारे खानदान के बहुत सारे लोगों को शहीद किया, प्यास अगर ना बुझी हो तो मेरी भी जान निकाल लो। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली अकबर के मुकाबले में प्यारे चूंकि ये बहादुर वक्त थे, ये हजरत हुसैन के घर वाले थे, ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का खून, उनका दूध उनकी रगों में दौड़ रहा था। इस वजह से कौन था जो उनके मुकाबला करता। अज़ीज़ान गिरामी हजरत अली अकबर तलवार पे तलवार चला रहे हैं, मगर जालिम यजीदी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अमर इब्न साद का ऐलान हुआ, चारों तरफ से तलवार चलाई जाए, चारों तरफ से नेज़े चलाए जाएं, चारों तरफ से तीर की बौछार की जाए। आप जरा देखो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली उम्मत रसूलुल्लाह के निवासे के सगे बेटे को करबला के मैदान में खड़े करके चारों तरफ से तीर चला रही है, चारों तरफ से बौछार कर रही है नेज़ों के। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मैदान करबला में जब चारों तरफ से तीर चली है, अल्लाह अकबर कबीरा या अबता अदरिकने, ए मेरे बाप अपने बेटे की खबर लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा अब चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, छल्ले चल रहे हैं, तीर के बौछार हजरत इमाम अली अकबर पर हो रहे हैं प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा जंग का नक्शा हजरत इमाम हुसैन अपने माथे के निगाह से देख रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ अपने बेटे को प्यारे अपने बेटे के पास हजरत हुसैन आए हैं। हजरत अली अकबर करबला के रीति जमीन पर गिरने ही वाले थे कि नीचे से थाम लिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खीमा में लाए हजरत अली अकबर को, आंखें खोली, माँ की ममता ने अज़ीज़ान गिरामी जब देखा हजरत अली अकबर को अपने छाती से लगा लेती है। बहन ज़ैनब रो रही है, आका हुसैन की आंखों में अज़ीज़ान गिरामी एक बेटे की तय मोहब्बत का समंदर है जो आंखों से निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा जालिमों ने हम सभी है पैगंबर को भी करबला के मैदान में मार डाला है, अली अकबर भी मैदान करबला में शहीद कर दिए हैं। चीख पुकार का आलम खीमे हुसैनी में कायम है। हाय अल्लाह, ये मेरे बेटे शहजादे को भी जालिमों ने मार डाला। हाय अल्लाह, मेरे भतीजे को भी जालिमों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा अज़ीज़ान गिरामी अभी तक किसी ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ नहीं मांगी है कि अल्लाह हुसैन को करबला में बचा ले, क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी सबको मालूम था कि करबला में हुसैन मारे जाएंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी जा रही है। वरना हम सुन्नियों का तो प्यारे अकीदा है कि अगर हुसैन एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लेते, हजरत ज़ैनब अगर एक मर्तबा करबला के मैदान में अपने आंचल को फैला देते, ए परवरदिगार ये जालिम खत्म हो जाए, तो अल्लाह तमाम जालिमों को जमीन के नीचे धंसा देता। मगर कोई भी अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा है। अगर आप जरा देखो, करबला में तमाम लोग मार डाले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत हुसैन खेमे हुसैनी में है। हजरत शहरबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चे अली असगर को लेकर के अज़ीज़ान गिरामी खेमे हुसैनी के बाहर निकले। आका हुसैन की बारगाह में अज़ीज़ान गिरामी हजरत ज़ैनब भी है, हजरत शहरबानों भी हैं, उनके हाथ में 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा है। आका हुसैन ये बच्चे का रोना देखा नहीं जाता है। सरकार हम 3 दिन के भूखे प्यासे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये बच्चा बार बार अपनी जुबान को बाहर निकाल रहा है। मेरे प्यारे आका हुसैन, दूध में थन में हमारे दूध बाकी नहीं है, दूध खुश्क हो चुका है। सरकार हमारे बच्चे को बचा लीजिए। सरकार आप जालिमों के पास जाएं, उन जालिमों ने आपके बेटों को मारा है, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा, इसका चेहरा देखो,
ऐसा लगता है कि जैसे फूल बन गया हो। मेरे सरकार इस बच्चे को लेकर के करबला के मैदान में जाएं। उन यजीदियों के पास भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे को वो लोग देखेंगे तो हो सकता है उनके दिल में प्यार का समंदर पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शहरबानो अदीदान गरामी अपने गोद में अपने 6 महीने बच्चे को लेकर के, हजरत ज़ैनब अपने 6 महीने भतीजे को लेकर के हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मुतालबा कर रही है, मेरे सरकार हुसैन आप बच्चे को लेकर के करबला के मैदान में जाइए। हो सकता है जालिम यजीदी पानी का एक कतरा, देखिए बार बार अपनी जुबान को बाहर निकाल रहा है, अगर एक कतरा ही मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप करबला के मैदान में प्यारे हजरत हुसैन के सामने उन्हीं का 6 महीने का सगा बेटा है, बार बार अपनी जुबान को बाहर निकालता है, आंखों से आंसू जारी है। हजरत ज़ैनब रो रहे हैं, हजरत शहरबानो बार बार दुहाई दे रहे हैं, मेरे प्यारे आका हुसैन मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा है, एक फलक के नीचे एक कतरा नहीं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला पिला करके जवान करती है, मगर प्यारे हुसैन हमारे थन भी खुश्क हो गए हैं, पानी का एक कतरा नहीं है, दूध नहीं निकल रहा है। सरकार अब बच्चे को लेकर के जाइए, जालिमों को रहम आ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत हुसैन को मालूम है कि मेरा बच्चा अगर करबला में गया तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मगर बहन का मुतालबा है, एक माँ की ममता है जो तड़प रही है हुसैन के सामने। आप ले जाइए, जालिम यजीदी मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे, वो तो जवानों को मार देंगे, बूढ़ों को मारेंगे, 6 महीने का बच्चा है, उन लोगों को क्या बिगाड़ा है। आप ले जाइए, पानी का एक कतरा ही मिल जाए, इसकी जिंदगी सलामत हो जाए। एक माँ की ममता के सामने हुसैन का अदीदान गरामी सब्र है जो जवाब दे जा रहा है। अपने 6 महीने बच्चे को लेकर के हुसैन मैदान करबला में गए हैं, और मैदान करबला में जाने के बाद आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंच करके अपने बाप ने अपने 6 महीने बच्चे को लेकर के अदीदान गरामी जालिम यजीदियों के सामने अपने बाहों को फैला देते हैं। ए जालिम यजीदियों, हमारा बेटा 6 महीने का है, ये शहरबानों की निशानी है, हजरत ज़ैनब का दुलारा है, मेरे खानदान का हुमकता हुआ ये लड़का है, 6 महीना अभी नहीं हुए हैं, इनके माँ के दूध थन सूख गए हैं, दूध का कतरा नहीं है। ए जालिम यजीदियों, 3 दिन का भूखा प्यासा अल्लाह शहजादा तेरी बारगाह में हम लोग लाए हैं, एक कतरा पानी पिला दो कयामत के मैदान में, इसके बदले में आपका जान से शफाअत करवाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये करबला के मैदान में एक बाप अपने 6 महीने बच्चे को लेकर के जालिम यजीदियों के सामने खड़ा होकर के अदीदान गरामी पानी मांग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर कोई भी इंसान पानी देने के लिए तैयार नहीं है। आप करबला का जुल्म प्यारे देखते हुए चलिए, ये कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले माता अल्लाह रब्बिल आलमीन है, नबी का कलमा भी पढ़ रहे हैं और नबी के नमाज़ की औलादों को प्यारे एक कतरा पानी देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में हुसैन पानी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुरमला इब्ने काहिल ने प्यारे एक ऐसा तीर मारा जो हजरत हुसैन के बाजू को प्यारे पैवस्त करता हुआ हजरत अली असगर के हुलकूम यानी गले को चीरता हुआ बाहर निकल गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। अदीदान गरामी एक बूढ़ा बाप अपने 6 महीने बच्चे के खून को अपने हाथ में लेता है, और लेने के बाद आका हुसैन अपने चेहरे पर मलने के बाद सर उठा करके अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में मैं अपने 6 महीने बच्चे की कुर्बानी भी पेश कर रहा हूँ, या अल्लाह तू 6 महीने बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले। हज़रात गरामी, इस्लाम इतनी आसानी के साथ नहीं आया है, इस इस्लाम की जड़ों में हुसैन इब्ने अली का लहू शामिल है, इस इस्लाम की जड़ों में मासूम अली असगर का खून शामिल है, इस इस्लाम की जड़ों में अब्बास अलमबरदार का कटा हुआ बाजू शामिल है, इस इस्लाम की जड़ों में हज़रत हुसैन इब्ने अली के अवानो अंसार का हलकता हुआ लहू शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तब जाकर के प्यारे इस्लाम हमारे घर तक आया है, तब जाकर के ये कुरान हमारे घरों तक आया है, तब जाकर के हमारे मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं, तब जाकर के हमारे मदरसों में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती हैं। अदीदान गरामी, इस्लाम की कदर करो, इस्लाम की कदर करो, ईमान की हिफाजत करो, अमाले सालिहा का पैकर बन जाओ। आप देख तो रहे हैं कि करबला के मैदान में जो जाता है मारा जाता है। अब अदीदान गरामी हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, ये भी शहीद हो गए। हजरात चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा वक्त ना लेकर के अब जरा देखें पहले तमाम मानो अंसार करबला के मैदान में शहीद। अब पन्हा हुसैन करबला के मैदान में बचे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन को मालूम है कि बगैर हमारी जान लिए यजीदी मानेंगे रहे, खीमा में गए हैं। अदीदान गरामी, हजरत ज़ैनब रो रही हैं, हजरत शहरबानो रो रही हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन 18-22 साल की जवानी है, एक कमजोर है, बेबस है, ज़ईफ है, नातवा है, बुखार की शिद्दत है, उठना चाहते हैं मगर कपकपी तारी है, गिर जाते हैं। किसी तरीके से हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में उठे, अब्बू जान हमें भी करबला में जाने की इजाजत दो। हमारे भाई तो अल्लाह के हुजूर पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने अपने साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गले से लगाया, ए मेरे ज़ैनुल आबिदीन, तुम करबला में ना जाओ, हमारे अमानतों के वारिस तुम ही हो, हमारी जानशीन तुम ही हो, क़यामत तक तुम्हारे ही नस्ल से हमारी औलादें जिंदा सलामत रहेंगी, हमारी नस्लें तुम्ही से जारी होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन ने ऐलान कर दिया कि अब मैं भी करबला जाने वाला हूँ। एक बीवी है जो अपने शौहर का चेहरा देख रही है,
ایک بہن ہے جو اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر کے اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنا رہی ہے. اب پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہیں. حضرت زینب کو کلیجے سے لگا کر کے وصیتیں کرتے, اے میری پیاری بہن زینب, آج کے بعد تمہیں حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا, تمہیں باپ کا کردار ادا کرنا پڑے گا, تمہیں بھائی کا کردار ادا کرنا پڑے گا. جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب. حضرت زینب کو وصیت کرنے کے بعد, یہ حضرت زینب ہمارے وصال کے بعد, ہماری شہادت کے بعد جزا و فضا نہ کرنا, چلانا نہیں, چیخنا نہیں, ماتم نہ کرنا, گریبان ناچا کرنا, کپڑے نہ پھاڑنا, بلکہ میری طرح صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے ہمارے خاندان والوں کی حفاظت کی ذمہ داری آج کے بعد تمہاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین نے اپنے نانا جان کا امامہ باندھا, اپنے والد گرامی کا جبہ پہنا, ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں لیا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچہ ہاتھ میں لیا. میدان کارزار میں حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہے, پیٹھ پیچھے عزیزان گرامی حضرت شہربانو کھڑی ہیں, جو ان کی بیوی ہے, ان کی ایک بہن حضرت زینب ہے جو تماشا دیکھ رہی ہیں, ان کے گھر خاندان کی بہو بیٹیاں الوداعی نگاہ عزیزان گرامی حضرت امام حسین پر ڈال رہے ہیں. اب حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں, تمام ظالم یزیدیوں کو حضرت امام حسین للکارتے ہیں. یکے بعد دیگرے کئی ہزاروں لوگ آئے لیکن سب کے سب کربلا میں مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ظالم یزیدی چاروں طرف سے تیر چلا رہے ہیں, نیزے چلا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چاروں طرف سے حضرت امام حسین پر حملہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چاروں طرف سے جب حملہ کرنے کے بعد 72 زخم لگ چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صبح سے لڑائی جاری ہے. عزیزان گرامی ایسے حالات میں ایک ظالم انسان نے ایسا نیزہ مارا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کے ماتھے پر وہ پرچھا جا کر کے لگا اور ایک نیزہ جا کر کے سینہ کے آر پار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ماتھا جس کو مصطفیٰ اپنے ہونٹ سے چوما کرتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, اسی ماتھے پر لگا. حسین کو غش آئی, نیچے گر پڑے اور گرنے کے بعد ظالم انسان آگے بڑھا, اپنے تلوار کو ہوا میں لہرایا, گردن مارنا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں ظالم انسان آخری بار اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لینے دو. اللہ اکبر کبیرہ. صبر و استقامت کا وہ پہاڑ صبح قیامت تک اپنی جسم کا آخری لہو دے کر کے اسلام کو زندہ جاوید کرنے والا حسین کربلا کی زمین پر آخری سجدہ کر کے اللہ اکبر کبیرہ سجدہ اور نماز کی اہمیت اپنے ماننے والوں کو بتا رہا ہے. سجدہ کیا عزیزان گرامی, پھر ایسا سبارہ سجدہ سے سر اٹھتے ہوئے کسی انسان نے نہ دیکھا. حالت سجدہ میں ظالم انسان کی تلوار لہرائی اور حسین کا سر جسم سے الگ ہو گیا ہے. رسول اللہ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے سامنے اپنے بھتیجوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھانجوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر کے آخر میں جا کر کے خود بھی شہید ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے یہ داستان کربلا تھی. یزید یہ جانتا تھا کہ آج کے بعد حسینی خاندان والے مر جائیں گے, حسین کی نسل کو ہم نے کربلا میں تباہ کر دیا ہے, مگر اللہ نے ایک زندہ بچ جانے والے زین العابدین کی نسل کو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے, ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کا کونا کونا چھان مارو, آپ کو کوئی بھی یزید کا بیٹا نظر نہیں آئے گا, مگر اجمیر چلے جاؤ حسین کی اولاد آپ کو اجمیر نظر آ جائے گی. کالپی میں آپ کو حسین کی اولاد مل جائے گی. دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ کے بیٹے اور اولادیں آپ کو مل جائیں گی. عزیزان گرامی, اسی سے پتا چلا کہ یزید اصل میں کربلا میں ہار گیا تھا اور حسین صبح قیامت تک شہید ہو کر کے فتح یاب ہو گئے تھے. آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ اعلان کر رہا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ وہ ظلم ابن زیاد کا, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.